Hello, students, and today we'll do another poem from your Beehive book, that is The Lake Isle of Innisfree, and this poem has been composed by William Butler Yeats. Now, let's talk about the poet. William Butler Yeats belonged to Ireland, and he was also a recipient of Nobel Prize in Literature. First, I'll give you an introduction of the poem. So, basically, this poem explores the poet's longing for the place of Innisfree. Innisfree is the name of a place where poet had spent his childhood, and now he might be not there, and he might be living in some other place. So, he wants to go back to the lake island of Innisfree. Isle is a shortened form of island here. Let's begin the poem. So here we have first stanza of the poem. Let me recite it first. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. So students, first I would like to tell you that this is a lyrical poem. What does it mean? A lyrical poem is a kind of a song which has been written in the form of poem. So in this stanza, poet wants to say that he wants to go to Innisfree, and Innisfree is his childhood place. Over there, he will build a small room, you can say a small hut for himself with clay and small sticks, as he also needs some food to eat. So he will grow 9 rows of beans. Beans, as you know, that it's a vegetable, and he will get the honey from hive, and it will be okay if honeybees make sound of buzzing around him, and in this way he will get the peace there. So in the stanza, basically he wants to say that he wants to quit materialistic life, and he wants to go in his free in order to get some peace. सो इस स्टांजा में पोएट ये कहना चाह रहा है कि वो इनिसफ्री जाना चाहता है. इनिसफ्री उसकी बचपन की जगह है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीच में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पोएम है एक लिरिकल पोएम है. लिरिकल पोएम क्या होती है? एक सॉन्ग होता है जिसको हम पोएम की फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू द पोएम. इनिसफ्री उसकी चाइल्डहुड की जगह है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया है. तो पोएट वहाँ पर जाना चाहते हैं. विलियम बटलर यीट्स वहाँ जाना चाहते हैं, और वहाँ पर वो जाकर एक घर बनाना चाहते हैं अपने लिए. अब जब वो घर बनाएंगे तो वो क्ले और वेटल से बनाना चाहते हैं. क्ले, यू नो दैट, मिट्टी. वेटल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्टिक्स होती है, ट्विस्टेड काइंड ऑफ स्टिक्स होती हैं जो कि वॉल्स वगैरह बनाने के लिए काम आती है, वुडन काइंड ऑफ हाउस. तो और वहाँ पर जाके अब उन्हें कुछ खाना भी चाहिए अपने आप को फीड करने के लिए. तो वो 9 रोज बनाएंगे बीन्स की. बीन्स वेजिटेबल होती है, आपको पता है. और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हनी भी अगर मुझे लेना होगा तो मैं हाइव से ले लूँगा. ठीक है. हनी बीज का हाइव होता है, छत्ता. ठीक है. और अगर हनी बीज उसके चारों तरफ बज़ क्रिएट करेंगी, बजिंग उसकी साउंड होती है, तो वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि वो एक नेचुरल साउंड है. और इस तरह से वो वहाँ पर अकेले रह सकेंगे और एक शांति का एहसास कर सकेंगे. तो इस स्टैंजा में पोएट आपको ये बताना चाह रहा है कि वो अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ना चाह रहे हैं. मटीरियलिस्टिक लाइफ जो होती है, मैं आपको ये इस तरह से समझा सकती हूँ कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ इंसान जॉब जा रहा है, पूरे दिन उसी में घुसा हुआ है, वही काम कर रहा है. उसका इतना टाइट शेड्यूल है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, और इतना शोर शराबा हो रखा है कि उसे एक सेकंड रुक कर ये सोचने के लिए नहीं टाइम मिल पा रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है. तो इसलिए इन सब चीज़ों को वो छोड़कर अपने पुराने घर में, या कह ले पुराने जगह में, वो जाना चाहता है. So here we have second stanza of the poem. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wing. So in this stanza, poet says that the feeling of peace is felt gradually, and later he describes how he would feel peaceful. Like in the morning time, when it is cloudy or foggy, then it will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself. And further, he says that sound of cricket, twinkling stars in the midnight, and the noon of purple glowish, and the sound of linnet birds flying in the sky will make him peaceful. अब इस स्टैंजा में पोएट हमें ये बताते हैं कि जब वो इनिसफ्री जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें शांति का एहसास होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे करके महसूस होती हैं. अब वो हमें एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरा उन्हें एक्सप्लेन करा है कि वो कैसे इस तरह शांति को अनुभव करेंगे. तो मॉर्निंग में जब
मॉर्निंग जो सुबह के समय अगर क्लाउडी होगा या फिर फॉगी समय होगा तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान ने घूंघट ओढ़ रखा है। वेल का मतलब घूंघट होता है, पर्दा, बुर्का, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जब घूंघट हटेगा और आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो उन्हें ये चीज़ शांति का एहसास दिलाएगी। और क्रिकेट की जो आवाज़ होती है, क्रिकेट इट्स एन इंसेक्ट, वो एक साउंड क्रिएट करता है, उसकी आवाज़ में उन्हें शांति का अनुभव होगा। और रात के समय जब स्टार्स ट्विंकल करेंगे या फिर दिन के समय जब सूरज बहुत तेज़ चमकेगा, और इसी तरह शाम के समय जब जो लिनेट बर्ड होगी, लिनेट एक बर्ड होती है ग्रे कलर की, बहुत स्मॉल बर्ड होती है, वो जब उड़ेगी अपने पंख फैलाकर, तो ये सारी चीज़ें उन्हें शांति का एहसास दिलाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचर को डिस्क्राइब कर रही हैं, नेचर को बिलोंग कर रही है। और ये सारी चीज़ें नेचुरल है, इसमें कुछ भी आप ये नहीं कह सकते आर्टिफिशियल हैं। तो ये सारी चीज़ें भले ही अगर साउंड भी क्रिएट करें तो भी उन्हें यहाँ पर शांति ही मिलेगी। So now this is the last stanza of the poem. I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core. So in this stanza, poet wants to say us that he will stand up finally and go to Innisfree, because all the time the sound of the lake water reminds him of Innisfree. Whether he is standing on the roadways or on the grey colored footpath, he hears the sound deep in the innermost part of his heart. He always thinks about that place which is Innisfree. सो इस स्टांजा में पोएट ये कह रहे हैं कि अब वो उठ खड़े होंगे और फाइनली इनिस्फ्री चले जाएंगे, क्योंकि दिन रात यानी हर समय उन्हें जब भी वो लेक की पानी में, लेक का जो पानी है वो किनारों से जब भी टकराता है, शोर का मतलब किनारे होता है, उससे टकराता है, तो चाहे वो रोड पे खड़े हो और चाहे वो फुटपाथ पे खड़े हो, पेवेंट्स का मतलब फुटपाथ होता है जो कि ग्रे कलर के बताए गए यहाँ पर, तो वो हमेशा उनके दिल की गहराइयों तक भी उन्हें वो आवाज़ें सुनाई देती है। और बस उनको ये सारी चीज़ें सुनकर वो अपने पिछले दिनों को याद करने लग जाते हैं, इनिस्फ्री को याद करने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर पोएम एंड्स। Now students, let's talk about the poetic devices or figure of speeches that have been used in this poem. So this is the second stanza of the poem, and in the second line of this stanza, dropping from the wheels of the morning. So wheels of the morning का मतलब है वो सुबह जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ है। As I have told you in earlier lectures also that अगर हम किसी inanimate object को यानी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को जब हम लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉर्निंग क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने लिविंग थिंग बना दिया, एक फीमेल बना दिया यहाँ पर, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो हियर मॉर्निंग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, उसे एक फीमेल बता दिया क्योंकि फीमेल ही घूंघट ओढ़ती है या पर्दा करती है, बुर्का करती है। अब स्टूडेंट्स, इसी व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग में एक और पोइटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। मेटाफर इज अ यू कैन से इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन कैसे है कि वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का जो यहाँ पर पोएम में जो मतलब निकल कर आ रहा है उसका मतलब है ऐसी सुबह जो कि क्लाउडी हो या फिर फॉगी हो, ठीक है, यानी क्लाउडी मॉर्निंग और यू कैन से फॉगी मॉर्निंग। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग को डायरेक्टली किसको क्या बता दिया गया है, क्लाउडी मॉर्निंग या फॉगी मॉर्निंग बता दिया गया है। So students, now you can see this is the first stanza of the poem, and in the first line, I will arise and go now. So this line has been repeated 2 times in this poem. In the first stanza also or in the last stanza also, I will arise and go now. So this poetic device is known as repetition. ये repetition है, जब एकदम सेम लाइन का या सेम वर्ड का बार बार आना होता है किसी भी स्टैंजा में तो वो repetition होता है। So that's all for today and thanks for listening.